A very good morning, dear students. This is Paramjit. We are doing chapter number 2, Basic Accounting Terms. Today we will discuss 7th point of Basic Accounting Terms, that is the asset. What is asset? Assets are future economic benefits, the rights of which are owned or controlled by an organization or individual. It means it is the property of a business enterprise, including the amount due to it from other, that is called asset, right? मतलब anything which will enable a business enterprise to get cash or benefit in near future is an asset. So for example, cash and bank balance, stock, furniture, machinery, land and building, bills receivable, debtors, all are assets, right? Main three characteristics are of asset. It should be, first is the resources must be valuable. Second thing, resources must be owned by the business. ठीक है. थर्ड पॉइंट इज द रिसोर्सेज मस्ट बी एक्वायर्ड एट ए मिजरेबल मनी कॉस्ट, राइट. तो एसेट्स में बी क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज: नॉन करंट एसेट्स एंड फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट्स. नॉन करंट एसेट्स मीन्स विच आर हेल्ड फॉर कंटिन्यूड यूज इन बिजनेस फॉर द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज और नॉट मेंट फॉर सेल. इनको सेल नहीं करना हमें, राइट. फॉर एग्जाम्पल, नॉन करंट एसेट्स आर and long-term investments, for example fixed assets, etc. It has further two types: tangible and intangible assets. Tangible assets are those which can be seen, touched, which have a physical existence, such as land and building, plant and machinery, furniture, computer, motorcycle, etc. Intangible assets which do not have any physical existence, cannot be seen or felt, right. Example, goodwill, patents, copyright, trademark, etc. Computer software, prepaid expenses. Intangible assets are also valuable assets, right. Next point is the current assets. Current assets are those assets which are meant for sale. Meant for sale means or which the management would want to कन्वर्ट इंटू कैश विद इन 1 ईयर. एक साल के अंदर अंदर इनको हमें सेल भी करना है और कैश में कन्वर्ट भी. सच एज स्टॉक, डेटर्स, कैश एंड बैंक बैलेंस, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम्स, राइट. नेक्स्ट पॉइंट इज द फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट्स. फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट्स मीन्स विच कैन नॉट बी रियलाइज इन कैश. ये कभी भी कैश में रियलाइज्ड नहीं होंगी, बिकेंगी नहीं. नो फर्दर बेनिफिट कैन बी डिराइव फ्रॉम दीज एसेट्स. सच एसेट्स इंक्लूड डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इट मीन्स द लॉस, राइट, एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस. दीज टू टाइप्स ऑफ द fictitious assets, right. These assets are not really assets but are shown on the asset side only for the purpose of transferring them to the profit and loss account gradually over a period of time, right. So these are the assets. Next basic accounting term is the capital receipt and revenue receipt. Capital receipt means shown in the balance sheet either as increase in liability or as reduction in the value of asset. That is the capital receipt. For example, it is also necessary to make proper clear होना चाहिए distinction between capital and a revenue receipt. So because the revenue receipts are shown on the credit side of the trading and profit and loss account, whereas capital receipts are shown in the balance sheet. Capital receipt balance sheet में आते हैं, revenue receipts are shown on credit side of the trading and profit and loss account, right. तो capital receipts, example of capital receipts are amount received from the sale of fixed asset or investment, right. अगर फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट को सेल किया जाए तो जो अमाउंट रिसीव होगा दैट विल बी द कैपिटल रिसीव्ड. देन कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर और मनी ऑब्टेन फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स इन केस ऑफ कंपनी. अगर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है प्रोप्राइटर, यानी कि उसमें इन्वेस्ट कर रहा है और पैसा लगा रहा है, या पार्टनर पैसा लगा रहा है, या फिर आप मनी ऑब्टेन कर रहे हैं इस शेयर्स, कंपनी के केस में शेयर्स इशू कर रहे हैं, जो मनी इन्वेस्ट करेंगे, और डिबेंचर्स की वजह से, या फिर लोन रेज कर रहे हैं किसी भी बैंक से या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, दैट विल बी द कैपिटल एंड कॉन्ट्रीब्यूशन.
कहीं से भी पैसा अरेंज करके वो जब अपने एंटरप्राइज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, दैट इज द कैपिटल रिसिप्ट. सेकेंड इज द रेवेन्यू रिसिप्ट. रेवेन्यू रिसिप्ट दैट इज शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट. इट मीन्स ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है. और मनी ऑब्टेन फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स, अगर मनी आता है आपका तो विद इन 1 ईयर वी रिसीव्ड दिस मनी फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स. Second thing, commission and fees received for service rendered. Third is the interest and dividend received on the investment. These are the examples of the revenue receipts. Next, 9th point is the expenditures. Expenditure also classified into 3 categories: capital expenditure, revenue expenditure, and deferred revenue expenditure. Capital expenditures are incurred in acquiring or increasing the value of fixed assets, right? फॉर एग्जाम्पल, अमाउंट स्पेंड ऑन द परचेज ऑफ बिल्डिंग. अगर आपने बिल्डिंग परचेज किया तो उसके लिए जो पैसा खर्च किया दैट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर्स. फॉर एग्जाम्पल, अमाउंट स्पेंड ऑन परचेज ऑफ प्लांट, फर्नीचर एक्सेट्रा. सेकेंड थिंग इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. एनी एक्सपेंडिचर द फुल बेनिफिट ऑफ विच इज रिसीव्ड ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग पीरियड इज टर्म्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. फॉर एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सैलरीज, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो भी आप पे करते हैं, ठीक है, विद इन अकाउंटिंग ईयर, इसी साल में जब आप पे करते हो. गुड्स को परचेज करने के लिए जो पेमेंट की जाएगी वो कॉस्ट जो आएगी, सैलरीज जो स्टाफ को दी जाएगी, रेंट जो बिल्डिंग के लिए आप पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो दीज आर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, राइट. थर्ड पॉइंट, और शोन इन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. लेफ्ट साइड मीन्स डेबिट साइड मीन्स लेफ्ट साइड. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विल शो डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. थर्ड पॉइंट इज अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. Revenue in nature, but the benefit of which is likely to be derived over a number of years. एक बार आप इनको खर्च करेंगे लेकिन इनका जो बेनिफिट है वो आने वाले कई सालों तक हो सकता है. बेनिफिट ऑफ सच एक्सपेंडिचर्स लास्ट 3 to 7 years. 3 से 7 साल तक आपका इसका बेनिफिट ले सकते हो. सो नॉट डेबिटेड इन द करंट ईयर बट स्प्रेड ओवर द ईयर फॉर विच बेनिफिट इज लाइकली टू लास्ट. इट मीन्स ये सिर्फ उसी साल के करंट ईयर की डेबिट साइड में ही सिर्फ नहीं आप शो करेंगे, सिर्फ उसी साल का इसको एक्सपेंस नहीं मानेंगे, बल्कि जब तक आप उसका बेनिफिट ले रहे हैं तब तक के लिए इसको स्प्रेड करेंगे उन्हीं ईयर्स के लिए. फॉर एग्जाम्पल, अ फर्म स्पेंड ₹2 लाख ऑन एडवर्टाइजमेंट टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट. एक फर्म ने 2 लाख रुपीज़ का स्पेंड किया है एक प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए, एंड बेनिफिट विल लास्ट, और अगले 4 ईयर्स के लिए उनको बेनिफिट मिलेगा फॉर 4 ईयर्स. तो हर बार हम क्या करेंगे, 2 लाख को 4 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 50,000. 50,000 विल बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ईच कॉन्जिक्यूटिव 4 ईयर्स. आने वाले 4 सालों में हर बार 50,000 को ही हम यहाँ से चार्ज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से, और जो भी बैलेंस आपका बचता रहेगा दैट विल बी ट्रांसफर टू द बैलेंस शीट. जैसे फर्स्ट ईयर में आप 50,000 चार्ज करेंगे तो उसका जो बैलेंस होगा दैट इज 1,50,000 दैट विल बी शोन इन बैलेंस शीट in asset side as a deferred revenue expenditure. अभी हमने इसमें क्लियर किया था आपको fictitious asset में this point, right? So these are all points almost are interrelated, right? So these are the deferred revenue expenditures. So today's that is the enough for today. So thank you so much. Have a nice day.